السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اپنے تنازعات حل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی تیسرے فریق کی ثالثی قبول ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے 3 روزہ دورے کے دوران خلیج ٹائمز سے انٹرویو کے دوران ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ایک ساتھ متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی وجہ سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان متحدہ عرب امارات میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی اپنے بھارتی ہم منصب سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کا ایک ہی وقت میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اور تجزیہ کاروں کے خیال میں ان کے درمیان بالواسطہ یا بلا واسطہ بات چیت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان اور افغانستان اسلامی جمہوریہ کی مذاکراتی ٹیموں کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک طالبان کو ترکی کانفرنس کے بارے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ، قطر، امریکہ اور ترکی نے پچھلے دنوں میں طالبان کے ساتھ کئی ملاقاتوں میں طالبان اور امریکہ کے درمیان اعتماد سازی کی کوشش کی ہے اور انہیں کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ اتوار کے روز وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کے خطرات پر توجہ مرکوز رکھے گا، مگر امریکی فوج کے انخلا کے بعد اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ امریکہ 11 ستمبر تک اپنے بقیہ 2500 فوجی افغانستان سے واپس بلا لے گا، جو القاعدہ کے امریکہ پر اس حملے کی 20ویں برسی ہے جس نے امریکہ کی طویل ترین جنگ کو جنم دیا۔ پروگرام فاکس نیوز سنڈے میں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون سے پوچھا گیا تھا کہ عراق سے سن 2011 میں امریکی فوج کے انخلا کے بعد وہاں داعش دوبارہ قابض ہو گیا تھا، اور جس نے سابق صدر براک اوباما کو وہاں دوبارہ فوج بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا، تو افغانستان میں اس کا کتنا خطرہ موجود ہے۔ جیک سلیون نے کہا کہ بائیڈن کا امریکی افواج کو واپس افغانستان بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم انہوں نے مزید کہا کہ مجھ سمیت کوئی بھی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ افغان پارلیمنٹ کے متعدد اراکین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے اس بیان پر شبہات کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ستمبر میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مجوزہ انخلا کے بعد افغانستان کی انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ افغانستان میں 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے بارے میں جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 20 برس کے دوران جنگ میں 2,41,000 افراد ہلاک ہوئے، جن میں امریکی بھی شامل ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ اموات براہ راست اس جنگ کی وجہ سے ہوئیں۔ گزشتہ جمعے کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس جنگ پر اب تک امریکہ کے 22 خرب 60 ارب ڈالرز خرچ ہوئے ہیں۔ پاکستان، جو کہ سن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کا حصہ بنا، اس نے لگ بھگ 2600 کلومیٹر کے علاقے میں فوجی آپریشنز کیے، جس میں سے اسے افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی مدد بھی حاصل رہی۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے جمعے کو 5 پاکستانی کمپنیوں اور 6 شہریوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ پابندیاں ان افراد اور کمپنیوں کے روسی سائبر کمپنیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مبینہ مداخلت میں معاونت کے الزام پر لگائی گئی ہیں۔ امریکہ نے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں 32 افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ ان میں یہ 6 پاکستان کے شہری اور 5 کمپنیاں شامل ہیں، جبکہ روس کی کئی شہری اور کمپنیاں بھی
पाबंदियों की जद में आई हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि जिन 32 कंपनियों और अफराद पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रूस की हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए सदारती इंतखाबात के बारे में गलत मालूमात फैलाईं और इंतखाबात में मुदाखलत के मुर्तकिब हुए। पाकिस्तान की कंपनियों पर अमरीका के कानून EOS 13848 और 13694 के तहत पाबंदी लगाई गई है। इस कानून के तहत अमरीका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के जुर्म में पाबंदियां लगाई जाती हैं। मॉस्को ने चेक रिपब्लिक के इन इल्ज़ामात के बाद कि 2 रूसी जासूस जिन पर सन 2018 में बरतानिया में नर्व एजेंट जहर देने का इल्ज़ाम है, असलहे के चेक डेपो में सन 2014 के धमाके के भी जिम्मेदार हैं, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए थे, सख्त बरहम होकर 20 चेक सिफारतकारों को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है। हफ्ते के रोज़ प्राग ने रूस के 18 डिप्लोमेट्स को मुल्क से निकल जाने के लिए कहा था। अमरीकी महकमा खारजा ने प्राग के मजबूत रद्द अमल की हिमायत की है, जबकि यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा आज अपने इजलास में इस मसले पर गौर कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने इतवार के रोज़ यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी फौजियों की बड़ी तादाद में तैनाती पर तशवीश का इजहार किया है और मशरक़ी यूक्रेन में 7 साल से जारी तनाज़े आराई में कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर जोर दिया है। यहाँ यूक्रेनी अफवाज रूस के हिमायत याफ्ता बागियों के साथ नबर्द आसमां हैं। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि हालिया हफ्तों के दौरान फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है, जबकि इस साल तकरीबन 30 फौजी हलाक हो चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स स्क्वायर पर जमा होने वाले अफराद से खिताब करते हुए कहा कि वो फौजी सरगर्मियों में इजाफे की शिद्दत का इंतहाई तशवीश के साथ जायजा लेते हुए उन्हें पूरी उम्मीद है कि तनाव में इजाफे से गुरेज किया जाएगा और इसके बरक्स बाहमी एतमाद और अमन को फ़रोग़ देने का इंदिया दिया जाएगा, जिसकी बेहद ज़रूरत और ख्वाहिश है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रॉन ने कहा है कि आलमी ताकतों को रूस के मुकाबले आने पर एक वाज़े रेड लाइन खींच देनी चाहिए और मॉस्को के खिलाफ मुमकिन पाबंदियों पर गौर करना चाहिए। ये बात उन्होंने अमरीकी टेलीविज़न नेटवर्क CBS को एक इंटरव्यू में कही है। इतवार को दिए गए उनके वीडियो इंटरव्यू के क्लिप के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अपनी साख कायम रखने का सिर्फ यही एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि अगरचे ताज़ीरें बजाय खुद काफ़ी नहीं होती, मगर ये एक पैकेज का हिस्सा हो सकती हैं। उन्होंने सदर पुतिन से बातचीत के लिए सदर बाइडेन की आमादगी से इत्तेफाक भी किया है। मैक्रोन की ये रिमार्क्स रूस के बारे में फ्रांस के इससे पहले के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ और उसके इत्तेहादी अमरीका से करीब तर हैं। रूस के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नावेल्नी, जो जेल में भूख हड़ताल पर हैं, उनके एक इत्तेहादी ने पीर के रोज़ बताया है कि नावेल्नी की सेहत के बारे में किसी अच्छी खबर की तवक्को नहीं है। इसी दौरान CNN के मुताबिक नावेल्नी को दोबारा अस्पताल भेज दिया गया है। अमेरिका ने खबरदार किया है कि अगर नावेल्नी की जेल में मौत वाक़ई हो गई तो रूस को नताइज भुगतना होंगे। नावेल्नी के हामियों ने मुल्क भर में एहतजाज का भी फैसला किया है। शाम की पार्लियामेंट के स्पीकर ने इतवार को ऐलान किया कि 26 मई को सदारती इंतखाबात कराए जा रहे हैं। मालूम होता है कि मुल्क में खाना जंगी के दौरान ये दूसरा इंतखाब सदर बशार अल असद को इख्तिदार में रखेगा। सन 2000 में अपने वालिद की मौत के बाद इख्तिदार संभालने वाले बशार अल असद ने अभी तक इंतखाब में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया है। उन्होंने पिछले इंतखाबात में 88% वोट लेकर इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। शाम के सन 2012 के आइन के तहत सदर 2 मरतबा 7 साल की सदारती मुद्दत पूरी कर सकता है। मिस्री हुकाम का कहना है कि काहिरा के शिमाल में मुसाफिर ट्रेन के एक हादसे में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि कैलूबिया सूबे के शहर नाभा में इतवार के रोज़ ट्रेन की कम से कम 4 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि तकरीबन 98 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि गाड़ी के डिब्बे उल्टे हुए हैं और मुसाफिर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेन मिस्र के दारुल हुकूमत से नील डेल्टा के शहर मंसूरा जा रही थी। मिस्र में हालिया बरसों में रेल के हादसों में ये ताज़ा तरीन वाक़या है। इतवार के रोज़ 5 रॉकेटों ने एक ऐसे इराकी एयरबेस को निशाना बनाया
जहां अमरीकी फौजी तैनात थे। इस हमले में 2 गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स और 3 इराकी फौजी जख्मी हुए। ये ताज़ा हमला ऐसे में किया गया है जब बगदाद के इत्तेहादियों तेहरान और वाशिंगटन के माबैन तनाव पाया जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि बगदाद के शिमाल में बलद एयर बेस पर फायर किए गए 2 रॉकेट एक हॉस्टल और एक अमरीकी कंपनी की कैंटीन से टकराए। फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी का किसी ने दावा नहीं किया है। ताहम अमरीका अमूमन ईरान से मुंसलिक इराकी धड़ों को अपनी फौजों और सिफारतकारों पर इस तरह के हमलों का जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन के मामले पर कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत का मकसद एक ही है। ताहम फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजना मसले का हल नहीं है। पीर को कौम से अपने मुख्तसर खिताब में इमरान खान ने कहा कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने और ताल्लुकात ख़त्म करने से पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल मसनूआत का 50% यूरोपीय ममालिक को बरामद करता है। अगर फ्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजा गया तो इससे न सिर्फ मुल्क को माशी नुकसान पहुंचेगा बल्कि बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। उनका कहना था कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन के मामले पर मुसलमान ममालिक के सरबराहान अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। इमरान खान ने कहा कि 50 मुसलमान मुल्कों में से कहीं भी ऐसे मुजाहरे नहीं हो रहे हैं और न ही सफ़ीर वापस भेजने के मुतालबात किए जा रहे हैं। TLP से मुज़ाकरात के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके साथ हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का मंसूबा बना चुके हैं और यहीं से मुज़ाकरात का सिलसिला टूट गया। लाहौर के इल्ताक़ इलाके मुल्तान रोड पर चौक यतीम खाना के करीब कलदम जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना 8वें रोज़ भी जारी है। धरने में शरीक TLP के कारकुनों का कहना है कि जब तक तहरीक लब्बैक के अमीर साद हुसैन रिजवी को रिहा और पाकिस्तान से फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाला जाता, वो अपना एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। TLP के खिलाफ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के बाद अहले सुन्नत उलमाए कराम ने TLP के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है, जिसके बाइस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दुकानें जुज़वी तौर पर बंद हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ दीनी जमातों के कायदीन हुकूमत और कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत के लिए कोट लखपत जेल में TLP के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात कर रहे हैं। उलमाए कराम के 9 रुकनी वफ़द की कोशिश है कि हुकूमत और TLP के साथ मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएं। वाज़ेह रहे कि TLP के लाहौर में धरने को ख़त्म करने के लिए इतवार के रोज़ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन किया था, जिससे मुतादिद अफराद के ज़ख्मी और हलाक होने की इत्तलात हैं। पाकिस्तान में कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इंतज़ामिया की लाहौर में होने वाली झड़पों पर पाकिस्तान हुकूमत की हिदायत पर तमाम कवरेज बंद करवा दी गई हैं। पेम्बरा की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी कोई खबर नशर नहीं कर सकता, लेकिन इस मौजू पर हुकूमती तर्जुमानों के बयानात नशर करने की हिदायत भी की जा रही हैं। ऐसे में मालूमात के लिए दस्तयाब सोशल मीडिया अफवाहों का गढ़ बना हुआ है और लाखों की तादाद में जाली पोस्ट्स गर्दिश कर रही हैं, जिनके मुताबिक लाहौर में सैकड़ों अफराद हलाक हुए हैं, जबकि दरहकीकत ऐसा नहीं है। सहाफ़ती तंजीमों ने लाहौर समेत दीगर इलाकों में एहतजाज पर कवरेज की पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद होने से सोशल मीडिया पर अफवाहों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत का कहना है कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में रवां साल रिकॉर्ड 6,127 केसेस और 149 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मरीजों की तशख़ीस के लिए सबसे ज़्यादा 71,836 टेस्ट किए गए हैं। इतवार को गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,56,285 हो गई है, जबकि अमवात 16,243 हैं।
پاکستان میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے کورونا ویکسینیشن کے لیے ایک بار پھر طبی عملے کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر بھارت میں کورونا کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,73,810 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے اور 1,619 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک کی مختلف ریاستوں کے ہسپتالوں میں بیڈز اور آکسیجن کی قلت ہو گئی ہے۔ دارالحکومت دہلی کو بھی قلت کا سامنا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے مطابق دہلی کا صحت کا نظام اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے آج یعنی 19 اپریل کی رات 10 بجے سے اگلے پیر کی صبح 5 بجے تک کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ البتہ لازمی خدمات کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے انتخابی ریلیوں پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔